Today, under the series of promoting living traditions, we bring to you the history of indigo, its uses, and why it is called the blue gold. The Britishers, as few people know, termed this bush the blue gold, simply because it supplied a natural dye world over when artificial indigo blue dye had not been discovered. This is the bush. It's a hardy bush. It is grown naturally. It grows on its own in most parts of Rajasthan. Formerly, Bayana was the center of indigo, the biggest center for indigo, with others being Savai Madhopur, Bundi, Kota, and also Bisalpur. Now, first let's talk about this bush. It's all its 5 parts: the root, the stem, the leaf, the fruit, and the flower give us indigo. And this is a natural, they give us natural dye. Unlike the other dyes, it does not harm the biodiversity of the area. It's a hardy bush, and it's a commercial plant which can be grown anywhere as long as the temperatures don't go very low. Today with me is Brij Udaywal, whose 5 generations of his family have been in this trade. Initially, indigo was done by the Nilgars, but with the passage of time, the Nilgars moved away as it became more and more expensive to do indigo dyeing. However, we are very grateful to Udayji, who has kept this living tradition alive. For the last 6-7 years, he has fully devoted himself to keep this trade going. So Udayji, आप हमें बताएं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है डाइंग में? क्योंकि एक जड़ी बूटी है और इस नाते ये नील के लिए, नीले रंग के लिए, आरजीबी में से एक नीला रंग जिसका कि 80% स्थान होता है, ये प्लांट उस 80% स्थान को पूरा करता है. मतलब आरजीबी में 80% के लिए ये प्लांट है, और इस प्लांट के लिए कंट्री जो है, हमारा कंट्री वो सूटेबल है. साउथ एशिया जो है वो इसके लिए सूटेबल एरिया है जहाँ पर कि इस प्लांट की खेती की जा सकती है. इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया बॉटनिकल नेम है. नील जो है वो हिंदी नाम है इसका, और रीजनल नाम इसके बहुत सारे हैं, नीली वगैरह वगैरह वगैरह. तो ये सारे नाम जो है इस बात के लिए हैं कि ये इंडिजिनस प्लांट जो कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा काल से ये प्रचलन में है, और ये प्रचलन जब से चला आ रहा है तब, जबकि यहाँ पर 5000 वर्ष पहले इस काल में इसकी खेती हुआ करती थी. उससे भी पहले का अगर इसका रिकॉर्ड देखना चाहेंगे तो वो पेरू में मिलता है ऑन रिकॉर्ड. हमारे यहाँ पर इसकी मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से लिंक होता है ये. लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये प्लांट हर जगह उगाया जा सकता है, और ये प्लांट जो कि एक इंडिजिनस प्लांट होने के कारण इससे जो रंग निकलता है नीला रंग, वो नीला रंग सर्वोपरि रंग है, और पूरी दुनिया में यहीं से अंग्रेजों के द्वारा, पोर्तुगीज के द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विशेष तौर पर इस क्षेत्र में काम करती थी. Now, it is very interesting. We are closer to our Independence Day. We must recall that the first civil disobedience movement, the first non-cooperation movement, was started by Gandhiji in Champaran, where there were planters of indigo, and the British had levied 48 different taxes on them. So indigo has historically played a very important role in our freedom struggle also. Now, as far as indigo goes, it is not drained. So, especially in our times, it is a very sustainable fashion medium. Am I right? Yes. It is the only dye which is not drained, unlike the mills and the other artificial dyeing colors, when thousands of trillions of liters of water is washed away into our rivers.
The Yamuna is a living example of it. The indigo has several forms. One of them is where the yarn is dyed first into blue and then it is hand woven, handcrafted and produced into a product. Like आप अपना ये दिखाइए. This. The yarn was first dyed, then the weavers hand wove it into a stole. Now the other part is this. How is this kurta different from this chunni? ये धागे को पहले रंगा हुआ है और उसके बाद में वार्प और वेफ्ट दोनों रंगे हुए हैं और फिर इसकी बुनाई की हुई है. हैंड स्पन है, हैंड वोवन है, कंप्लीटली सस्टेनेबल है, खद्दड़ कपड़ा है, सोखने की क्षमता है, हवा इसमें आती है तो ये पसीना आने पर भी आपको ठंडक देता है और ये बायोडिग्रेडेबल होने के कारण आपने जब 6 महीना साल भर पहना तो उसके बाद से अपने आप से गल जाएगा. तो ये बहुत सारी विशेषताएं हैं इसमें. So this is mindful fashion that now we have started talking about, and this is also sustainable natural fashion. The other indigo is the दाबू इंडिगो, जो आप बताएंगे इसकी क्या खासियत है. दाबू इंडिगो जिसमें कि हम दबाने से तात्पर्य है कि आप एक एरिया को छापे के द्वारा मिट्टी, चूना, बीधन और गोंद के मिश्रण से ये बनता है. इसको हाथ के छापे से छाप दिया जाता है. जिस जगह ये छापा गया एरिया है ये कवर हो जाता है रेजिस्ट होने के लिए, और जब डाई बाथ में उसको डाला जा रहा है तो डाई बाथ में जो एरिया बाहर है वो डाई होगा और जो एरिया कवर्ड है वो सफ़ेद रहेगा. तो ये दाबू प्रिंट है और डाइड विद द नेचुरल इंडिगो. I am also told that to get a certain deep blue of indigo, you have to dye it several times. आपको कई बार उसको इंडिगो में डुबाना पड़ता है. यहाँ पर ये देखिए कि आपको एक गहरा नील का प्रमाण दिखाई दे रहा है जो कि गहराई से है. गहराई से मतलब है कि अगर हमने जितनी बार उसको डिप डाई किया है, मतलब ऑक्सीडेशन डाई, अगर हम 15 बार करते हैं तो हमको मोर के गर्दन जैसा नीला रंग मिल सकता है. और जो सबसे फाइनली जो कोबाल्ट ब्लू जैसा रंग दिखाई देता है वो सबसे गहरा रंग होता है. मतलब मोर की गर्दन या नीलकंठ या ऐसा रंग जो कि अंतिम रंग है नील का, वो रंग ऐसा होता है. अब नीला रंग जो कि जरूरी है बहुत सारे रंगों के लिए, नीला इटसेल्फ, उसके बाद में अगर हरे के लिए नीला चाहिए, काले के लिए नीला चाहिए, बैंगनी के लिए नीला चाहिए. इसलिए मैंने आपको बताया कि जो नीला रंग है उसका RGB में 80% का स्थान है. It is also very interesting to recall that earlier indigo has medicinal values also. During World War I and II, it is said the British dyed the uniforms of the soldiers in blue because if and when there was an injury or there was a cut, the fact that they were wearing indigo and its contact with the skin would help in healing the area. Am I right? Yeah. I'm also told there is indigo. It is a medicinal plant. आयुर्वेद में शायद इसका बहुत यूज होता है. जी हाँ, ये एक ऐसा प्लांट है जिसके 5 अंग, जिसमें कि रूट में सबसे ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यूज़ होते हैं. जहाँ जैसा मैंने बोला कि रंग सबसे ज़्यादा पत्तियों में होता है, लेकिन मेडिसिनल वैल्यूज़ रूट में होता है, जिसकी चाय भी बनाई जाती है, जिसके प्रमाण दूसरे इसी के भांति का नील जो कि स्टेट्स में होता है उसकी चाय भी बनाई जाती है. तो मतलब नील से चाय, नील जो कि बालों को रंगने के लिए काम में आता है, नील जो कि ऐसा प्लांट है जिसको फूड कलर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, नील जिसका कि इंक बनता है, नील जिसका कि इस्तेमाल बहुत सारे रोगों के लिए, बहुत सारी दवाइयों में दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ में इस्तेमाल किया जाता है. मतलब नील जो कि एक मैन्योर का भी काम करता है. मतलब नील एक ऐसा विषय है जो कि हर पार्ट उसका जरूरी है, महत्वपूर्ण है. और उसके साथ में ही जो दुनिया में भ्रांति है कि नील की खेती से ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म होती है, ये पूर्णतया मिथ्या है.
और नील की खेती जहाँ पर होती है, अगर उसके पड़ोस में दूसरी खेती की जाती है तो उसको ये सपोर्ट करता है, ना कि जमीन की उर्वरकता को खत्म करता है। So actually this myth of indigo harming the biodiversity of the area must have been started when the West, especially in West Germany in 1885, Yeah. they discovered, they invented artificial indigo by Bayer and Perkins. Bayer and Perkins. There were two scientists who discovered artificial indigo. And after that, as the lobbies become active, it became fashionable to say that natural indigo is harmful for the skin and it is harmful for the biodiversity. There is another thing to indigo. The vegetable waste which is recycled, and indigo, it like apples, pomegranates are used. Am I right? Pits are dug, waste apples and waste pomegranate peels are soaked for a period of how many days? Actually the first process is fermentation. जी. तो वहाँ पर किसी तरह के किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, पानी और नील के प्लांट से फर्मेंटेशन करके रंग और पानी को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद जब हम रंगाई करते हैं, रंगाई करने के लिए हमको और दूसरे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पर रिडक्शन के लिए हमको फ्रूट्स की या गुड़ की या इमली की या कासिया तोरा की या अनार की उन वेस्ट मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। और उसके साथ में हमको अल्कलाइन वाटर करने के लिए, क्योंकि मोलिक्यूल साइज ऑफ इंडिगो इज बिगर देन अदर डाइज, इसके लिए उसको अल्कलाइन करने के लिए चूने का प्रयोग होता है या सी शेल्स का प्रयोग होता है, या उसके साथ में जिन पदार्थों से हमको अल्कलाइन मिलता है जो कि वेजिटेबल्स से भी होता है, उनका प्रयोग करके नील की रंग तैयार की जाती है, जो कि 6 घंटे से लेकर 21 दिन का समय लेता है। इस तरीके से नील तैयार होती है। Can we show our audience one of the pits? Sure. आइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब आप हम लोगों ने continue कर दो। इंडिगो को रंगने के लिए या प्लांटेशन के लिए, So this is the indigo pit, as you can all see. इसमें चूना, lime, am I right? या Lime, tamarind, imli, water और नील, Neem of course is the base, has been added. And for how many days have you left it to ferment? देखिए ये माठ वेट बनाने के लिए, इमली का वेट बनाने के लिए करीब 6 घंटे का समय चाहिए होता है। इन 6 घंटों में ये ऐसी जगह पर आ जाता है, ऐसा रंग हो जाता है इसका। इसमें आपको जो रंग, इसका जो पीलापन है, जैसा ये आपको दिखाई दे रहा है जी। ये होगा तो इसका मतलब है कि ये डाइंग के लिए तैयार है। और जैसा कि आप ये झाग देख रहे हैं, इस पर ये जो भिन्न भिन्न आपको ब्लू के टोन्स दिखाई दे रहे हैं, शेड्स दिखाई दे रहे हैं झाग में, वो ही डाइंग में कपड़े पर आने वाले हैं। जबकि डाई का रंग जो है वो पीला पीला हरा हरा है। जब हम इसको इसमें डालेंगे, ये देखिए इसने रंग को उठाना शुरू कर दिया है और ये 1 से 2 मिनट में रंग को पी लेता है। और जब आप देख रहे हैं यहाँ पर, जब को ये रंग को पी रहा है, उस समय में इसका रंग जो है वो पीलापन लिए हुए है। लेकिन जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे और ये हवा के संपर्क में आएगा तो यहाँ पर वो नीलेपन की तरफ जाएगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये नीला होने वाला है। अभी पीला हरा दिख रहा है, ये धीरे धीरे नीला हो रहा है। तो मतलब ये वेट डाइज है और ऑक्सीडेशन से इसका रंग परिवर्तित होता है। जितने, जैसे मैंने बताया था आपको कि 1 डिप, 2 डिप, 3 डिप, 15 डिप, 20 डिप, जितना हम इसको डिप करते जाएंगे, ऑक्सीडेशन करते जाएंगे, ये गहरा गहरा और गहरा नीला होता जाएगा, डीपर द इंडिगो होता जाएगा। Beautiful. So for how, now when will you add more lime or tamarind to this pit? इट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द कंजम्पशन, कि कितना आपने कपड़े को खिलाया है। तो वो ज़रूरत के हिसाब से जो भी इंग्रेडिएंट इसमें, चाहे नील है, चाहे पानी है, या इमली है, या चूना है, ज़रूरत के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से इसको खिलाना पड़ता है। Let us show our audience this. देखिए, this cloth now has turned blue.
जितना इसमें से निकालेंगे उतना इसको फीड करना पड़ेगा। ये लाइव कलर है, बैक्टीरिया है इसमें, और इसको एक धार्मिक आस्था इसके साथ में जुड़ी हुई होती है। इसको शुद्धता के साथ में, पूजा के साथ में इस्तेमाल किया जाता है और इसका पूरा सम्मान करना पड़ता है। पीसफुली आपको डाई करना पड़ता है, तब आपको ये डाई बाथ रेडी रहता है और तब जाके आपका डाई ठीक से आता है। It is very interesting. The Vaishnavas did not, at one time, did not allow Neel to go in the garbhagriha of a temple. Am I right? Right. Because they felt it had living bacteria. Yeah. But now Udayvalji, who himself is a Vaishnav, has taken the cudgels for keeping this living tradition alive. Now, why is it that indigo is more expensive than other dyes? We've already told you because it is natural. It multi-level dyeing चाहिए इसमें to get a certain blue. So it is also labor intensive. Right. Am I right? Right. So how long does it take for a piece to be ready to be used? डिपेंड्स। कभी अगर आपका प्लेन डाई होना होता है तो वो 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर आपको मल्टीपल टाइम डाबू करना है, डाई करना है, डाबू करना है, डाई करना है, तो कभी कभी ये 15-15 दिन भी ले लेता है। One single piece. और क्योंकि बहुत लेबोरियस होता है, मैनुअल होता है और पूरा परिवार इसमें काम करता है। ये कॉटेज इंडस्ट्री है और ये सस्टेनेबल क्राफ्ट है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए ये कुटीर उद्योग किया जाता है, जो कि पिछले 5000 वर्षों से इसी प्रकार से निरंतर जारी है। हो सकता है जब द्वापर युग था, त्रेता युग था, तब भी ये रंग यहाँ पर भारतवर्ष में, अखंड भारत में विद्यमान होगा, लेकिन हमारे पास लिखित इसके कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। लिखित रिकॉर्ड्स दुनिया में पेरू का 7000 वर्ष पहले का रिकॉर्ड मिलता है। Yes, but if you're talking of religion, the Vaishnavas, their god Krishna is जी, आसमान नीला, पानी नीला, शिव नीलकंठ, कृष्ण, राम, जिस तरफ आप देखेंगे आपको नीला दिखाई देता है, नीलोद्भव दिखाई देता है, नीलाकाश दिखाई देता है, क्योंकि जितना हम देखते हैं हमको सबसे ज़्यादा नीला दिखता है और उसके बाद हरा दिखता है। लेकिन नील जो है वो ग्रीन प्रोडक्ट है, ग्रीन इंडिगो है, इसलिए ये पूरी दुनिया में प्रचलित रहा है ब्लू गोल्ड की तरह। लेकिन बाद में जब सिंथेटिक्स का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद में इसको बदनाम कर दिया गया और इस पर बहुत सारे अत्याचार हुए, जिसमें नील दर्पण, नील विद्रोह और नील सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का जो पहला मूवमेंट था, उसके आधार पे आप देखेंगे कि इसके साथ में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छाइयाँ भी जुड़ी हुई है और बुराइयाँ भी जुड़ी हुई है। लेकिन जब हम प्रकृति की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, और विशेष तौर पर महामारी के बाद में, कि हमको प्रकृति को और नुकसान से, दोहन से बचाने के लिए हमको सिंथेटिक्स को छोड़कर प्लांट्स की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि आज ये परम आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमने पानी को बदला, जिस प्रकार से हम खाने को बदलने की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी तरह से हमको क्लोथिंग्स को भी बदलना पड़ेगा और लिविंग को भी बदलना पड़ेगा। तो ये एक मिशन है जिसमें आप मैडम हमको सपोर्ट कर रही हैं कि हम आपकी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने के लिए सहायक सिद्ध हो रही है। So Brijballabh ji, here's the thing. This is also a great iconic product for vocal, for local, because it is a locally grown plant, done by local people, done by local artisans, and it doesn't require, it is not a capital intensive industry. At the same time, it keeps the living traditions alive. We will now show you the other pits which have been made from other fruit products. Here are these tender bushes of indigo. They are hardy, they need very little care, and they don't need too much water. Am I right? जी। ये देखिए, we are now at the Neel one.
This whole area is dedicated to the indigo plant. Brij Pallab ji, आप हमें बताएं, when do you pluck these seeds? How long you leave them on the plant? वैसे तो बहुत ज़्यादा सर्दियों को छोड़कर पूरा सीजन इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन जो इसका क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी होती है तो ये बारिशों में होने वाली खेती है, तो पहली बारिश के साथ ही इसकी बुआई कर दी जाती है और लगभग 3 महीने में ये 90 दिनों में अनुमानतः 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई ले लेता है, कभी कभी 4 फीट की 5 फीट की भी ऊंचाई ले लेता है। तो 90 दिन में जब फ्लावरिंग होती है, जब इस पर फूल आ रहे होते हैं, यहाँ पर कई जगह आपको फूल दिखाई देंगे, पिंक कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं इसके, ये जब फ्लावरिंग होती है ये इसका दिखाई देता है, इस बात का सूचक होता है कि ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, इसको हार्वेस्ट किया जा सकता है। तो मतलब 90 दिन की काल में इसकी पहली कटाई की जा सकती है, 45 दिन बाद में दूसरी कटाई की जा सकती है और उसके बाद में फिर 45 दिन में तीसरी कटाई की जा सकती है। मतलब रंजके की तरह इसकी 3 बार कटाई ले सकते हैं और चौथी बार में हम इसको बीज के लिए रख सकते हैं ताकि फाइनली हमको बीज मिल जाता है। पहली और दूसरी क्रॉप जो है वो हेयर डाई के लिए जाता है और उसके बाद में रंग निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें जो यील्ड की पावर होती है वो पहली और दूसरी क्रॉप में ज़्यादा होती है और उसके अलावा उसमें फर्स्ट क्रॉप जो है वो सदियों से इसी प्रयोग में आती रही है। इसी के साथ आप यहाँ देखेंगे जिस तरीके की हाइट यहाँ पर देख रहे हैं, करीब 7 फीट की हाइट, 7.5 फीट की हाइट तक जो है वो प्लांट जा रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक प्लांट्स होंगे तो ये 7.5 फीट तक 8 फीट तक जा सकते हैं। आप देखिए कि आपका ऊपर जब हाथ करते हैं तब भी उससे भी ऊंचा जा रहा है, मतलब इट इज़ अराउंड 7.5 फीट्स। तो इस तरीके से अगर इसको सही तरीके से प्लांट किया जाता है अप्रैल के आसपास में, मई के आसपास में, तो ये समय तक इस जगह तक जा सकता है। ये प्लांट 3 बार इसकी कटाई होती है और ये इस प्लांट के साथ में दूसरी खेती भी की जा सकती है जिसको ये सपोर्ट करती है। So multi-level farming you are saying it can be done. जी, Can be done. जी। Can we move towards the pits? Please come. करेगा अब तो कर पड़ा और सुन We are at the workshop area where you will see different pits used for dyeing indigo. आप बताइए what is this? ये कौन सा वाला है? इस एरिया में हमारे जो वैट्स हैं वो भिन्न भिन्न तरीके से बने हुए हैं, मतलब उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला वैट है, ये मंजिस्टा मैडर से बना हुआ है जिसमें कि चूना, मैडर और नील और पानी। जबकि ये वाला जो वैट है ये इसमें जो मजिस्टा लिया गया, मैडर लिया गया, उसकी जगह इसमें गुड़ लिया हुआ है, जैगरी। अब क्या फर्क होता है इन दोनों में, बिना गुड़ के वक्त में और इसमें? देखिए रंग तो लगभग समान होगा, लेकिन ये इसलिए हम लोगों ने बनाए हैं कि डायर की लोकल अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो डाई मटेरियल ले सकता है। कि किसी के यहाँ पर अनार है तो वो अनार ले सकता है, किसी के यहाँ पर मजीठ है, या किसी के यहाँ पर गुड़ है, या किसी के यहाँ पर एप्पल है, किसी के यहाँ पर कुछ और है, ये कासिया तोरा है, ये अनार। तो ऐसे करके जहाँ पर खट्टा मीठा कुछ है जिसमें वो केले से भी हो सकता है, डेट से भी हो सकता है। तो मतलब इसको लाइव बैक्टीरियाज को जिंदा रखने के लिए, इनका और रिडक्शन के लिए, पानी से ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि चूना तो ज़रूरी है, अल्कलाइन, क्योंकि चूना हमारे यहाँ पर बहुतायत में उपलब्ध होता है, और उसके साथ में इसको अगर ये मजिस्ट्रा ले रहे हैं तो ये इसमें दूसरा ले सकते हैं, उसमें तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 15, 20, 25, 50 तरह के मटेरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जिनसे कि हम वैट्स बना सकते हैं लोकल अवेलेबिलिटी के हिसाब से। So you really can't get more organic, more natural than this.
So tell me, sometimes when we wear a particular sari or a kurta, the color runs. वो क्यों होता है? देखिए, ब्लू जो रंग जिसका सिर्फ एक ही प्लांट है, इंडिगो, इसके मोलिक्यूल साइज जो है वो दूसरे डाइस के मुकाबले में बड़े होते हैं। बड़ा मोलिक्यूल जब है तो फाइबर के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा। जब पेनिट्रेशन नहीं होगा तो उसकी रनिंग जो है होगी। लेकिन आपने देखा होगा कि सिर्फ नीला रंग एक ऐसा रंग है जिसकी वॉशेस करके पहना जाता है। हम इंटेंशनली उसकी वॉशेस करते हैं। ये रंग कभी भी कोई कहता है कि ये पक्का होता है, नहीं होता है। लेकिन अगर एक बार हमने एक्सिस कलर को बाहर निकाल दिया तो बंद हो जाती है। और यूं भी कह सकते हैं कि ये इसकी विशेषता है कि इसका रंग फाइबर के ऊपर रहता है और उतरता है। उससे डिफरेंट वॉशेस के उस पर डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं। और सिर्फ नीला ही एक रंग ऐसा है कि जितना आप उसको वॉश करते हो उतना वो ब्राइट होता है, चमकदार होता है, लविंग होता है। और कभी भी आप फटने के बाद भी आप गारमेंट को और पहने जाते हो। जबकि काला, पीला, हरा कोई सा भी रंग होगा, आप उसको 8-10 बार, 5 बार से ज्यादा नहीं पहन सकते। तो ये इसमें विशेषता है। और सबसे परम विशेष जो बात बताई मैंने कि इसको कभी भी ड्रेन नहीं किया जाता, इसके लिए ये सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली कलर है। You enter a room full of indigo products and you cannot help but feel the wow factor. Spiritually, it is also the color of our sixth chakra and the third eye. But one doesn't need a third eye to appreciate the great craftsmanship that has gone into making these indigo products. Most of these products are a part of the most eco-friendly, sustainable fashion. Eco-friendly because they have not unleashed a negative impact on the environment or have not damaged it permanently, as is the case with chemical dyes that are being flushed by millions of tons in our rivers. So, indigo products, personal accessories, or say clothing like scarves, stoles, both in silk and in cotton, or shirts for unisex shirts which can be worn by either men or women, tops the items exported the most. At the same time, table linen has also made itself felt because more and more people are using indigo on their tables, just as durries and rugs too have been made by dyeing first the indigo yarn and then converting into a product. The wow factor in indigo cannot be denied. That if we are in a room with indigo walls or blue walls, it tends to get overwhelming. Indigo is really a part of our living traditions, and even though its process, which is labor intensive and very eco-friendly, makes it difficult to be produced for masses, but in recent times there has been a revival of indigo products both by the young and old. Indigo hand-woven, handcrafted products are best suited for hot climate like Rajasthan, where
where summer tends to be something like 42 degrees. Also, these, like bed covers can be repurposed. There's a new concept that has come up